This is the digital marketing course that will be the completely free of cost. In this live classes will be there. After live classes, the video lecture will be given to you. Right. This is the welcome message. Like you can see that. Hello, welcome first class of DumDum Solutions. This is the first class. This is demo normally. Like in this, we will discuss about what we are going to learn in the complete digital marketing course. Like what will be the batch timing, what will be the batch day, and number duration of the course. We will discuss all the things there. So let me introduce first about DumDum Solutions. We are the digital marketing agency that based in Gurgaon location. Uh, our main work is like to develop the website designing services, digital marketing like SEO. We are the IT experts, right? So the next question is like why we start this course free. Normally everyone has the question like why we are offering this course completely free. Like just we want to change that, making digital marketing education available to everyone. Like we also have the paid course of the digital marketing, but along with that we want to offer something for the free. And this digital marketing syllabus, like if we go now digital marketing syllabus, so this part we will learn like initially we will cover up the search engine optimization, and search engine optimization we will learn about introduction to SEO. After that we will learn about on page SEO. After that off page SEO, technical SEO, SEO audit. These will be the terms of the search engine optimization जो हम इस complete course के दौरान हम पढ़ेंगे. Digital marketing के अंदर multiple terms आती है. एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, PPC, email marketing, inbound marketing, multiple terms are. So this is the chapter 1. We have divided this complete digital marketing course into the module 8, chapter 8 normally. So the first chapter in this we will discuss about the search engine optimization. Search engine optimization is a normal big term. If you see now, there are a lot of terms inside, like tools are there, from that you can do the website audit and SAML, multiple things will be there. But in this digital marketing course we will learn intermediate types. So in the search engine optimization we will learn introduction to SEO, on-page SEO, off-page SEO, technical SEO, SEO audit tools, measurement, indexing, API, page speed, inside. All the terms we will discuss later on. Now we are explaining just what we want to learn. In the chapter second we will learn search engine marketing. Chapter 3 will be social media marketing. Chapter 4 will be email marketing. 5 will be inbound marketing. 6 will be web analytics. 7 will be Facebook marketing. Chapter 8 will be other digital marketing part. Like apart from the digital marketing topics, what you can learn. So let me explain one by one these terms, like what is search engine optimization, what is social media marketing, and what is email marketing. So this is the course content as you can see here. The first topic is like introduction to the SEO. We will try to focus on generate the traffic in the quality. Like ऐसा होता है कि आप चाहिए 1000 कंटेंट 1000 ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता, बट ये मायने रखता है कि आप उसमें से 10 क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट कर पा रहे हो. आपके पास 200 ट्रैफिक आए वो सफिशिएंट होता है compared to the 1000. So introduction to SEO, understanding the importance of the SEO, how search engine work. In this chapter we will discuss this. ऑन पेज एसईओ एक ऐसा होता है कि जो आपकी वेबसाइट होती है उस पर हम काम करते हैं, लाइक क्रिएटिंग द मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, फिर आपके कीवर्ड्स, कैसे आप एक पेज के अंदर कीवर्ड्स को वो करते हो, अरेंज करते हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें. थर्ड पार्ट आता है इसमें ऑफ पेज एसईओ का. ऑफ पेज एसईओ एक ऐसा होता है कि आप अपनी डोमेन का जो नाम होता है उसकी एक अथॉरिटी क्रिएट करते हो बैकलिंक्स के थ्रू. बैकलिंक्स में आप मल्टीपल टर्म्स को यूज करते हो, लाइक आपकी बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल सबमिशन, क्लासिफाइड लिस्टिंग. इन चीज़ों से आपकी एक डोमेन की गूगल में बताते हो, एक अथॉरिटी क्रिएट करते हो, लाइक डोमेन अथॉरिटी जो अपनी होती है. टेक्निकल एसईओ के अंदर आप अपनी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करते हो. मतलब ये होता है कि उसमें आपकी HTTP पे चल रही है आपकी वेबसाइट, HTTPS पे चल रही है, आपकी वेबसाइट पे SSL इम्प्लीमेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल एसईओ में डिस्कस करते हैं. सो अगला पॉइंट जो आता है वो एसईओ ऑडिट का होता है. कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जब आप एसईओ स्टार्ट करते हो तो जो मेन थिंग होती है वो होती है एसईओ ऑडिट. लाइक आप उस वेबसाइट का ऑडिट करते हो कि इस वेबसाइट के अंदर ऑन पेज में ये कमी है, ऑफ पेज में ये कमी है, टेक्निकल में ये कमी है. तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एसईओ ऑडिट के. सो एसईओ टूल्स बेसिकली होते हैं लाइक
जिससे कि हम अपनी वेबसाइट का एसईओ एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। लाइक कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए आप कीवर्ड प्लानर का यूज करोगे। फिर आपको की ये वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए आप अलग अलग टूल्स का यूज करोगे, लाइक सैमरस का, एचरेफ का, इस हिसाब से। फिर आपको ये अपनी वेबसाइट को सबमिशन करनी है, डाटा को मेजर करना है तो उसके लिए आप एनालिटिक्स का मेजर करो, एनालिटिक्स का यूज करोगे, सर्च कंसोल का यूज करो। फिर इंडेक्सिंग एपीआई आती है। इंडेक्सिंग एपीआई बेसिकली करती क्या है, ये डायरेक्टली ये एक फास्ट वे होता है जिससे कि हम अपने वेबसाइट के पेज को गूगल में इंडेक्स करवा सकते हैं। एक होता है, एक प्रोसेस होता है कि आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके वहां पे आप उस पेज को इंडेक्सिंग करवा रहे हो। एक होता है कि आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग एपीआई के थ्रू बल्क में, लाइक 100 पेज 200 पेज आप बल्क में इंडेक्स करवा सकते हो गूगल में। वो चीज हम डिस्कस करेंगे। पेज स्पीड इंसाइट एक फैक्टर्स होता है जिससे कि हम अपनी वेबसाइट के स्पीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोबाइल में कितनी स्पीड आ रही है, डेस्कटॉप पे कितनी स्पीड आ रही है। सर्च इंजन मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सर्च इंजन मार्केटिंग इसमें नॉर्मली पेड्स आते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में जितने भी मेथड की बात करते हैं उसमें सब में पेड आते हैं। लाइक इसमें आप फेसबुक एड्स को रन कर सकते हो, ठीक है, आप गूगल एड को रन कर सकते हो, दिस इज द पेड पार्ट। एसईओ का मतलब होता है कि आप उसमें फ्री में काम करते हो, बट इन द केस ऑफ द सर्च इंजन मार्केटिंग ऑल द थिंग्स विल बी पेड। जिसमें आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क की बात करोगे, मीडिया एड कैंपेन कैंपेन की बात करोगे, शॉपिंग कैंपेन, यूट्यूब मार्केटिंग, ये चीज होती है। तो जब भी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस, तो जो अपनी सर्च इंजन मार्केटिंग होती है वो पेड पे रिलाई करती है, और जो एसईओ होता है वो अपना फ्री होता है, दैट विल बी द कम्प्लीटली फ्री। सो आफ्टर दैट द सोशल मीडिया मार्केटिंग इज देयर। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जितने भी अपने सोशल मीडिया चैनल होते हैं, लाइक आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी ये सोशल मीडिया चैनल होते हैं इन पे हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। सो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पे अपनी मार्केटिंग करते हैं थ्रू द पोस्ट, थ्रू द रील्स, थ्रू द वीडियोज। अलग अलग फॉर्मेट में हम इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे फेसबुक मार्केटिंग की, फिर हम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन मार्केटिंग, कैसे आप हैशटैग को फाइंड करते हो, कैसे आप कैप्शन को रिसर्च करते हो, वो सारी चीजें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर एक पार्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ईमेल मार्केटिंग एक बेटर वे होता है जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर कर सके। प्रोसेस क्या होता है ईमेल मार्केटिंग का, मतलब जैसे कोई भी हमारे पास ईमेल आई, आप जैसे आप सभी है, आप सभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आए हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वी हैव ऑल ऑफ योर ईमेल, हमारे पास आप सभी की ईमेल है। सो अब हम आपको लाइक वीडियोज लेक्चर आपके ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट रिकॉर्डेड सेशन, सेकंड रिकॉर्डेड सेशन, थर्ड रिकॉर्डेड सेशन। कोई आपको नोट्स भेजने हैं तो हम आपको नोट्स भेज सकते हैं उन ईमेल्स पे। आपको कोई क्विज भेजनी है तो क्विज हम आपको ईमेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कनेक्शन होता है जो ऑडियंस के बीच में, वो एक प्रॉपर है। आपके कस्टमर के बीच में जो एक रिलेशन रहेगा, लाइक दे विल नो, लाइक जब आप उनके पास बार बार ईमेल सेंड करोगे तो आप बीच में सही रिलेशन। फिर इसमें हम जब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे डिलीवरेबिलिटी की। इसमें हम ये बात करेंगे कि जो ईमेल होगी वो रिसिप्टेंट के, जो आपका एंड यूजर रहेगा उसके इनबॉक्स में जाए। फिर कैसे ईमेल के कंटेंट को लिखा जाता है, इफेक्टिव ईमेल कंटेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे लोग उसको खोले, हाउ टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द ईमेल, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे आप इफेक्टिव ईमेल कंटेंट को आप लिख सकते हो। कुछ इसमें स्ट्रेटेजी आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैसे आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू द ईमेल मार्केटिंग, कैसे आप जो पहले से कस्टमर आपके पास है उनको रीच कर सकते हो थ्रू द ईमेल मार्केटिंग। वो सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इफेक्टिव क्रिएटिव इंडस्टिंग, मतलब ये जो आपका क्रिएटिव रहेगा, जो आपका ना इमेज रहेगी, वो आप कैसे अच्छी क्रिएट कर सकते हो ईमेल में सेंड करने के लिए। नर्चरिंग एंड ऑटोमेशन की हम इसमें बात करेंगे, लाइक कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि कितने लोगों ने आपकी मेल को ओपन करा है, कितने लोगों ने आपकी मेल को देखा नहीं है। ऑटोमेशन के अंदर होता है कि जैसे किसी ने वेबिनार में
आपका कोई भी एक वेबिनार होस्ट कर रहे हो, उस पर साइन अप करा। अब उसने साइन अप कर दिया, साइन अप करने के बाद उसके पास ऑटोमेटिक एक सेकंड मेल चल जाए, थैंक्स फॉर साइन अप करके कुछ भी एक मैसेज, फिर एक फॉलो अप मेल चल जाए। एक होता है प्रोसेस कि आप इसको मैनुअली सेंड करो, दूसरा प्रोसेस होता है कि ये ऑटोमेटिक वे में चल जाए। तो वो ऑटोमेशन के अंदर आता है कि आपको एक बार फनल को सेटअप करना पड़ेगा, फिर आपकी जो ईमेल मार्केटिंग होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी वहां पे। ये मेल ऑटोमेशन का पार्ट हो। फिर जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं दो बेसिकली वे ऑफ मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो दो होते हैं, एक होती है आउटबाउंड, एक होती है इनबाउंड। आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है, दो मार्केटिंग की जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, एक होती है आउटबाउंड, दूसरी होती है इनबाउंड। आउटबाउंड जो मार्केटिंग होती है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हम खुद से कॉल्स या मैसेज कर रहे हैं लोगों के पास, वो सारी आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर आती है। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर आती है कि जो लोग होते हैं वो हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि आई नीड योर सर्विस, आई नीड योर दिस, ठीक है, वो चीज़ आती है। फिर इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर मेन अपना यही काम होता है कि हम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ले आए, थ्रू द कॉल्स, थ्रू द मैसेज। अब ये आता है जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छे से, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हैं, उस टाइम अपने इनबाउंड मार्केटिंग काम। और किसी भी बिजनेस को यदि आपको ग्रो करना है तो सबसे जो मेन फैक्टर्स होता है इनबाउंड मार्केटिंग। यदि आप लीड्स जनरेट कर पा रहे हो किसी भी बिजनेस के लिए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए। फिर पार्ट आता है वेब एनालिटिक्स का। वेब एनालिटिक्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम मेजर करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए हैं, कितने विजिटर्स ने ये फॉर्म फिल किया है, कितने विजिटर्स किस पेज से किस पेज पे गए हैं। जब आप इन सभी डाटा को मेजर कर लेते हो तब आप एक जो आपका कस्टमर है उसकी नीड्स को फाइंड कर लेते हो कि उसको आखिर में चाहिए क्या। तो जब आपको कस्टमर की नीड्स फाइंड हो गई है तब आप उसको पिच कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, वो वेब एनालिटिक्स के अंदर होता है। मतलब यही होता है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, यदि आपको विजिटर्स के बारे में पता है कि इस विजिटर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए हमसे, तो आप अपने जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे काफी अलग हो जाओ। वेब एनालिटिक्स के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर गूगल एनालिटिक्स की बात करेंगे, फिर कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि आपका वेब पेज पे जो कंटेंट, आपका वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आता है कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम विजिटर एनालिसिस की बात करेंगे, सोशल मीडिया एनालिसिस की, आप सोशल मीडिया में कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर फेसबुक मार्केटिंग के अंदर आती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक स्टोर, फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल एक ऐसा टूल्स होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई दैट द नंबर ऑफ द विजिटर्स कमिंग ऑन आवर वेबसाइट एंड वी कैन रीटारगेट देम through the Facebook pixel. You can see now here, measure the effectiveness of their advertising by understanding the action people take on their website. Means whatever the action, like people are filling the forms, we can track for the Facebook pixel in the Facebook ads. In the part of the other digital marketing strategy, we will discuss about like डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लाइक कोई भी आपका बिजनेस है जो आज आपने स्टार्ट किया है, तो आप उसको कैसे मूव ऑन कर सकते हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि कब आपको फेसबुक एड्स रन करनी चाहिए, कब आपको गूगल एड्स रन करनी चाहिए, वो चीज़ हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। अफ्लिकेट मार्केटिंग आती है। अफ्लिकेट मार्केटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइक हाउ टू अर्न कमीशन फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स। मतलब ये होता है कि जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट है, अमेजोन की वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पे कमीशन आप जनरेट, कमीशन देता है अमेजोन की, आपको ये आप सेल करोगे तो 2% कमीशन, 3%, 8% कमीशन आपको मिलेगा। वो चीज़ आती है अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। फिर आती प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपको एक होता है मैनुअल काम, जो आप मैनुअल वर्क करते हो, एक होता है ऑटोमेशन में। इसमें होता क्या है कि आपके पास जैसे आज किसी ने कोई चीज़ परचेज की आपके स्टोर से, एक मान लीजिए 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज किया, तो कल को आप एक ऑटोमेशन में इस हिसाब से उसको सेटअप कर देते हो कि कभी भी सेम कैटेगरी में यदि प्रोडक्ट्स आपके आए हैं तो उसके पास डायरेक्टली इनबॉक्स में चल जाए कि वी हैव लॉन्च दिस न्यू प्रोडक्ट। वो चीज़ आती है इसमें। जनरेटिंग लीड्स, सिंपल सी बात होती है, जब आपके पास आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे तो
वहां से आपको लीड्स जनरेट होगी। ये होगी एट द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये अपना कोर्स का ओवरव्यू था जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस कंप्लीट इस कोर्स के अंदर हम जितने भी अपने पार्ट्स होते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जितने भी टर्म्स आएंगे वो सबको हम कवर कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल हैव द ग्रेट नॉलेज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज फेसबुक एड्स, कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता है, कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सबकी आप क्लासेज अपनी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डे होगी इन ए वीक। टाइमिंग अपनी 1 PM से 2 PM एंड ड्यूरेशन अपना 3 मंथ्स का रहेगा। आपके पास पोर्टल लाइक अपने पोर्टल, आपने पोर्टल पे रजिस्टर किया होगा ना यहाँ पे, जैसे अपना पोर्टल है amjamsolutions.com पे आप जाएंगे तो ट्रेनिंग के अंदर फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्लिक करना। हाँ उसका भी डिस्कस, जैसे यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आप आए, ये फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, आपको सिंपली एनरोल नाउ पे बटन पे क्लिक करना है। यदि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है अभी तक, यदि क्रिएट कर लिया है तो आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर सकते हैं। नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना, अपना नेम। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर, आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस कोर्स में सक्सेसफुली हो चुका है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट लर्निंग बटन, तो आपको ये कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सारे जो अपने पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अब जैसे आज हमने एक, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, अब कल हम जब मंडे आएगा, मंडे को हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। फिर इन पार्ट्स के अंदर व्हेन यू क्लिक ऑन द इंट्रोडक्शन टू एसईओ तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी जब अपना उस टॉपिक का सिलेबस कवर अप। 3 डे लाइव क्लासेस की टाइमिंग हमेशा 1 से 2 PM तक रहेगी और फिर अपना रिकॉर्डेड सेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। जब रिकॉर्डेड सेशन आपका अपडेटेड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन भी चल जाएगी ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप। ये पार्ट, ये बेसिकली जो एक कोर्स है ये हम 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है ना डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें आपको एक अपना फ्री का है 2999 और अपना 1999 इसके अंदर लाइव क्लासेस तो आपकी फ्री रहेगी, यानी आपका कोर्स वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा जिसमें आप क्लास को अटेंड कर सकते हो, आपके रिकॉर्डेड सेशन भी फ्री रहेंगे। बट हम फ्री कोर्स के अंदर हम अपनी सर्टिफिकेशन ऑफर नहीं कर रहे हैं, दिस सर्टिफिकेशन जो ऑफर होगी वो अपनी 2999 में होगी, ठीक। जो कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स रहेगी वो अपने 299। फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो एक होता है ना, क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन होगा वो हम सेपरेट रखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस मीटिंग। इस पे तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हम रिजोल्यूशन देंगे। बट एक होता है जो इंटरेक्टिव, केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर होगा, लाइक आपको कोई इश्यू आ रहा है तो हम पर्सनल आपका सोल्व करवाएंगे उसमें, वो अपना 999 और 1 999 के रुपीज में है क्वेश्चन एंड आंसर। फिर ये आपका ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा चारों पैकेज के अंदर। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का, जब हम काम करेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आपको बताएंगे कि इस काम में ये करो, अब ये करो, अब ये करो। लाइक जैसे आपका एक मेन फील्ड एसईओ पे आ गए, क्या आप ये कह रहे हो कि मेरे को एसईओ ज़्यादा करना है, तो एसईओ के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, उसमें कीवर्ड रैंकिंग कैसे निकालते हैं, उसमें वेबसाइट के ऑडिट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो आपका लास्ट पैकेज के अंदर है। केस स्टडी होता है, केस स्टडी का मतलब ये होता है कि इसमें हम एक प्रोजेक्ट को पिक करते हैं, लाइक जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको इस पे काम करना है, तो एट द एंड में हम उसमें डिस्कस करवाते हैं कि आप कैसे इस प्रोजेक्ट की केस स्टडी को क्रिएट करोगे। अब कि मैंने कब से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया, फिर मेरी प्रॉब्लम्स क्या आई, मेरे चैलेंजेस क्या थे, मेरी मैंने क्या एफर्ट लगाए उसके अंदर, फिर रिजल्ट में क्या आया, फिर कंक्लूजन, वो हमारे इस लास्ट वाले पैकेज में है। केस स्टडी के अंदर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली स्टार्टिंग, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब प्रोजेक्ट कहाँ था, वो जब हमने प्रोजेक्ट खत्म किया है तब प्रोजेक्ट कहाँ है, कितना रिजल्ट हमारे पास आया है। एक ये ऑनलाइन कम्युनिटी है, ये अपने लास्ट 2 पैकेज के अंदर है। ऑनलाइन कम्युनिटी का मतलब आता है कि एक सेपरेट कम्युनिटी होगी जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हो, मतलब आपको थ्रू आउट द कोर्स कभी भी कोई भी इश्यू आ रहा है वो आप पूछ सकते हो हमसे। अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा चारों पैकेज के अंदर। क्विज एंड असिस्टमेंट आपको लास्ट के 3 पैकेज के अंदर मिलेगा। क्विजेज का मतलब होगा कि जब हम एसईओ टॉपिक, जो अपना एसईओ का टॉपिक है वो कवर अप हो गया तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं जो ऑप्शन वाले, वो हम आपको देंगे। कैरियर गाइडेंस सेशन अपने लास्ट पैकेज में रहेगा।
कैरियर गाइडेंस सेशन के में आता है, जैसे आज आपने एसईओ का टॉपिक कवर कर लिया और फिर हम एसईओ के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं नॉर्मली इंटरव्यू टाइप में। उससे हम एनालाइज करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस टाइप की आ रही है। जब आपकी परफॉर्मेंस उस टाइप की आ रही है फिर हम आपको सजेशन देते हैं कि आप अपनी इस कंपनी में अप्लाई करो, इस फील्ड में अप्लाई करो। वो चीज़ होती है कैरियर गाइड। नेटवर्क अपॉर्चुनिटी अपनी चारों में रहेगी। एक फॉरम वेबसाइट है अपनी अलग से फॉरम टाइप की। उसमें क्या होगा, कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी पर्सन से, ठीक है। उसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। फॉरम टाइप की अपनी वेबसाइट है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने एक ने क्वेश्चन राइज किया तो 4 लोग या 5 लोग मल्टीपल पीपल आके उस क्वेश्चन पे कमेंट, ये पर्सनलाइज फीडबैक। पर इस ये फीडबैक अपना लास्ट वाले पैकेज के अंदर है। पर्सनलाइज जो फीडबैक है, इस पर्सनलाइज फीडबैक के अंदर हम जब भी आप एक, ये क्या होगा जो अपना ये पार्ट होगा ना, यहाँ पे वेबसाइट का ये पार्ट होगा, इसके अंदर हम बैकएंड से ट्रैक कर सकते हैं कि आपने किस यूजर ने कितनी वीडियो को देखा है, कितने परसेंट पे देखा है, कितने परसेंट पे स्किप किया है, और कौन सी वीडियो उसने कंप्लीट कर लिया। वो सारी हमारे पास एक्टिविटी ट्रैक रहेगी। तो उसके बेस पे हम पर्सनलाइज फीडबैक देंगे यूजर को। जब कोई भी क्विज कंप्लीट कर लेगा या फिर अपना असेसमेंट पूरा कर लेगा तो उसके बेस पे पर्सनलाइज फीडबैक जाएगा कि आप इस फील्ड में अभी इस चीज़ में गिरो हो, इस चीज़ को इम्प्रूव करो। वो चीज़ें होगी। फ्लेक्सिबल लर्निंग है। फ्लेक्सिबल लर्निंग पे ये आपका यही है, कहीं भी आप देख सकते हो इसको। रिकॉर्डेड सेशन भी आपके पास रहेंगे। रिसोर्सेज लाइब्रेरी अपने पास। इसका मतलब होगा, जैसे एक होती है ना चीट शीट टाइप में। चीट शीट में ये होता है कि आपको जैसे ऑन पेज एसईओ करते हो तो ऑन पेज एसईओ में आपको क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी लास्ट के 2 पैकेज के। रिकॉर्डेड सेशन और लाइव क्लासेस में डिस्कस की जाएगी आपके साथ कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको करनी है। बट जो एक पीडीएफ में जो होगा वो आपको रिसोर्सेज लाइब्रेरी आपको लास्ट के 2 पैकेज में। मार्केटिंग टेम्पलेट होता है। मार्केटिंग टेम्पलेट यूज होते हैं जब आप किसी भी सर्विस को पिच कर रहे हो। like when you are targeting the SEO client, so you will use the sales script। लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास चारों पैकेज में रहेंगे। डाउनलोडेबल नोट्स, नोट्स तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट आप उसको फर्स्ट 2 पैकेज के अंदर आप केवल उसको वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, और लास्ट 2 पैकेज के अंदर उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इन लेक्चर नोट्स आपके मतलब वो वेबसाइट पे आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये हमारा जो प्राइसिंग था ना इस कोर्स की, वो ये प्राइसिंग थी। अब इस कोर्स के अंदर नॉर्मल एक लाइक आपको ये चाहिए कि थ्रू आउट द कंप्लीट प्रोग्राम पे हम आपको मेंटरशिप दें कि आप अभी ये चीज़ सीखिए, आप इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, या फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर आंसर डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो उसके लिए आपके लास्ट वाला पैकेज है। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपका ये वाला पैकेज है। ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप उसमें डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो उसको क्या क्या इसमें मिले। 27 मई को अपना पहला बैच स्टार्ट होगा, जो पहली क्लास होगी इसकी, जिसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक इसमें 10% ऑफ इस पैकेज की। कोई क्वेश्चन हो आपके?